Good afternoon, sir. Good afternoon. Okay, सर so we अभी will क्वेश्चन start. 5 ना. हाँ, अभी क्वेश्चन 5. यस, क्वेश्चन 5 यहाँ पर अगर हम देखें तो क्वेश्चन 5 इज सर आप थोड़ा स्क्रीन जूम को कर। मैक्सिमाइज कर सकते हो. यस यस, हो गया, ठीक है. हाँ सर अभी ठीक है. आपका क्वेश्चन है कि फ्रॉम द चॉइस गिवन बिलो चूज द इक्वेशन whose graphs are given in figure 4.6. whose graphs are given in figure 4.6. अब यहाँ पर ये ग्राफ दिया है, एक ही लाइन दी है, तो इसका मतलब एक ही इक्वेशन राइट होगा. ओके, सो you have to check at least 2 points, okay, which should satisfy the given equation. Now you take this point minus 1 comma 1. Okay, we have 3 points, huh? If you see, we have 3 point. One point is minus 1 comma 1, which is on the line. Second point is 0 comma 0, which is on the line. And third point is 1 comma minus 1, which is on the line. So we have these 3 points which are on the line. Now out of these 3 points, 2 points should satisfy equation. So first we take this equation y equal to x, okay, and we put x equal to minus 1 and y equal to 1, and we will check whether minus 1 comma 1 satisfies this equation. So what you will find that when you put y equal to y equal to plus 1 and x equal to minus 1, this point does not satisfy y equal to x. So I will say that the given line, so y equal to x is not the required equation. Second, you check for x plus y. When you put x as minus 1 and y as 1, you get minus 1 plus 1 0. So this point minus 1 comma 1 satisfies x plus y equal to 0. Then you choose 0 comma 0. You put 0 0. So 0 0 also satisfies this equation. So as 2 points are satisfying this equation, you will say that required equation is x plus y equal to 0. I hope you understand. सर इसका मतलब बहुत आसान है यस तो सर। हम लोग को No, नोटबुक sir. में नहीं करने की जरूरत है. इसको नोटबुक में, आप नोटबुक में करोगे ना, अब जो मैंने बोला है वो आप लिखोगे ना. अब ओके. कैसे लिखोगे? जैसे यहाँ पर ये जो आपको पॉइंट दिए हैं, मैं यहाँ पर लिखूंगा कि 3 points, I will write 3 points on line R. On line R, what are those 3 points? One is minus 1 comma 1 1. 0,0. Second, 0 0 comma 0. So I can give 0 some name 1 also, like comma A 1 minus comma 1. 1, B 0 comma 0, and I will give C, which is 1 comma minus 1. So these are 3 points. Now equation of lines. So first equation is y equal to x. Okay. Now minus 1 comma 1. So when we put when we put x equal to minus 1 and y equal to plus 1, यहाँ पर minus 1 equal to 1, which is incorrect. सर हम लोग ने वो वो -1 कॉमा 1 वो सबको ए बी और सी नेम क्यों दिया? आप दे सकते हो, मैंने बोला कि आप नेमिंग कर सकते हो ना. 3 पॉइंट है तो तीनों पॉइंट को मैंने एक पॉइंट ए, एक पॉइंट बी, एक पॉइंट सी कंसिडर कर लिया. ओके, इट इज योर चॉइस, यू कैन कंसिडर. नहीं कंसिडर किया है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके, so which is incorrect, so therefore उसके y equal एडवांटेजेस to क्या x होता है सर? is not the required line, is not the required line. Similarly, you can check second equation. You can check like that. Second equation is what? X plus y equal to 0. Now, when we put
when we put x equal to -1 and y equal to +1, what we get? We get -1 + 1, 0. So this is 0 equal to 0. So therefore you can say that -1 comma 1 satisfies the equation. Then second, we say that ki when x is 0, y 0, yeah, when we put second point, we write when we put I will say that when we put x 0, y 0, what we get? 0 plus 0 equal to 0. So 0,0 जो है 0,0 also satisfies equation. Therefore required equation of line is x plus y equal to 0. This is your required equation of line. You will check 2 point, at least 2 point in equation. If it satisfies the equation, you will say that the line is x plus y equal to 0. 2 points are satisfying. That means this is my required equation, x plus y equal to 0. यस सर. हाँ, आपके पास 3 पॉइंट है. आप 3 पॉइंट में से 2 पॉइंट आपका इक्वेशन सेटिस्फाई होना चाहिए, तो जाकर वो जो इक्वेशन है वो आपका रिक्वायर्ड लाइन का इक्वेशन होगा. ओके, क्योंकि हमको सर पता नेक्स्ट है. वाला हम खुद करें. हाँ, नेक्स्ट वाला आप खुद कर सकते हो. नेक्स्ट वाला है आपका क्वेश्चन. ये यहाँ पर 3 पॉइंट है आपके. यू कैन चेक विथ 2 पॉइंट. एनी 2 पॉइंट यू कैन टेक एंड चेक. सर पहले हम लोग y की वैल्यू लेंगे ना, फिर x. हाँ, हाँ, आपको देखो पॉइंट दिया है -1,3, तो -1 x की वैल्यू है और 3 y की वैल्यू है. पॉइंट इज ऑलरेडी देयर ऑन द लाइन. यू हैव टू जस्ट पुट सर आप एक बार फर्स्ट का सॉल्यूशन दिखाओ ना. फर्स्ट का सॉल्यूशन. ओके, फर्स्ट का हमने स्टार्ट किया. तो पहले हमने जो पॉइंट थे वो पॉइंट लिख लिए. फिर हमने पहला इक्वेशन लिखा और फिर हमने ये जो पॉइंट है ए वो पुट किया. तो ये सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो y इक्वल टू एक्स इज नॉट द रिक्वायर्ड लाइन. फिर हमने सेकेंड इक्वेशन लिया. सेकेंड इक्वेशन में पहला पॉइंट पुट किया. पहला पॉइंट सेटिस्फाई होता है. फिर हमने दूसरा पॉइंट लिया. दूसरा पॉइंट भी सेटिस्फाई होता है. तो देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन इज x plus y इक्वल टू 0. सिंपल. सर सेकंड वाला बताओगे क्या, 4.7 का क्वेश्चन. सेकेंड वाला क्वेश्चन देखना है. ये सेकेंड. सर इस वाले का स्टार्टिंग का क्या कैसे आपने. हाँ सर, बस खाली इतना ही दिखाओ. को फिर स्टार्टिंग कैसे करोगे? तो यहाँ पर भी आपने फिर उसको नेम कैसे किया. नेम आप नेम करो ना. नेम को क्या है प्रॉब्लम, कुछ नहीं है. आप जैसे ये वाला पॉइंट है, ये वाले पॉइंट को आप ए नेम कर दो, ये वाले पॉइंट को आप बी नेम कर दो, ये वाले पॉइंट को आप सी नेम कर दो. तो इट इज योर चॉइस ना. इट इज नॉट, there should not be any problem. You can name as PQR also. You can name as ABC. You can name as PQR. नहीं सर फर्स्ट वाले में. फर्स्ट वाले में ये आपका पॉइंट था ना. दिस पॉइंट आई नेम एज ए. सर मैंने फर्स्ट वाले का ना सॉल्यूशन नहीं लिखा है, वो देखना है. अच्छा, सॉल्यूशन लिखना है आपको. सॉल्यूशन लिखना है. तो ये सॉल्यूशन है.
लिख लो। सर फोर्थ वाला होगा सेकंड का आंसर, फोर्थ वाला सोल्यूशन। अच्छा, फोर्थ आया तुमको? हाँ फोर्थ x प्लस टू वाई इक्वल टू 6, तो x की जगह -1, y की जगह नहीं। फोर्थ वाला कैसे आया? आप x को -1 पुट करते हो और ये 3 पुट करते हो, तो 6 -1 + 6 कितना होता है? 5 होता है। ये पॉइंट कहाँ सेटिस्फाई हो रहा है? हाँ, तो सर फिर कोई हो सर ही नहीं नहीं रहा, समझ कोई रहा भी नहीं है। हुआ। हम लोग ने पहले कोई नहीं y हुआ। को 3 लिया, फिर x को -1 लिया, +2। तो पहला वाला सेटिस्फाई नहीं होता। ठीक है, हाँ दूसरा, सर मुझे ये वाला नहीं समझ रहा। दूसरा नंबर 5 नहीं समझ दूसरा रहा। पॉइंट यार को मैं बताता हूँ। y आपने 3 लिया, x की वैल्यू -1 ली, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं होता है। ये y इक्वल टू -x+2, यहाँ पर x की वैल्यू -1 लेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 1, 1 + 2 3। थर्ड इक्वेशन, ये पहले पॉइंट ए से सेटिस्फाई होता है, और जब y की वैल्यू 2 ली और x की वैल्यू 0 ली, तो ये 0,2 भी सेटिस्फाई होता है। तो थर्ड इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है ना। यू कैन सी दैट दिस थर्ड इक्वेशन इज सेटिस्फाइड बाय पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। सर, कैसे हुआ ये थर्ड वाला? थर्ड वाला आप पॉइंट पुट करो ना। जब आप y की वैल्यू 3 और x की वैल्यू -1 पुट करते हो, तो y की वैल्यू आपने 3 पुट की और x की वैल्यू -1 पुट की, तो आपको यहाँ पर क्या मिला? ये 1 मिला और ये 2 मिला, और यहाँ पर आपको 3 है, तो 3 = 3 अच्छा, सेटिस्फाइड हो मैंने गया। एक गलती कर दी, मैंने एक ही बार सिर्फ नेगेटिव साइन डाली है। हाँ, तो माइनस फिर x की वैल्यू भी माइनस। फिर अभी हम लोग सेकंड वाला चेक करते तो भी राइट आ रहा है आंसर सर। नहीं, सेकंड कैसे राइट सर आएगा? फर्स्ट वाले का मतलब सॉल्यूशन। इसका जो सेकंड पार्ट है 0,2। हाँ हाँ हाँ, बराबर है, वो भी आप करोगे तो आ जाएगा आपको। ओके, ठीक है, पूरा सोल्यूशन ये आपके सामने है। आंसर आ जाता है 2 = 2। हाँ, बराबर। सर, हम लोग को तीनों के तीनों फाइंड करेंगे तो भी चलेगा ना, ऐसे मतलब देखने के अगर लिए तीनों सिर्फ? के तीनों करोगे, यस यस, तीनों के तीनों करोगे तो भी चलेगा। खाली देखो, हम लोग आपको की पता है ना, अंडरस्टैंडिंग के लिए। हाँ, कोई भी लाइन है ना, 2 पॉइंट तो मिनिमम चाहिए चाहिए आपको। 2 पॉइंट तो आपको एटलीस्ट चेक करना है, क्योंकि एक ही पॉइंट रहेगा तो एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइंस कैन गो, बट फ्रॉम 2 पॉइंट ओनली वन लाइन कैन गो। So if 2 points are satisfying any equation, then there is no need to check third point or fourth point. But if you want, you can check. सर, थर्ड वाला भी चेक किया, थर्ड वाले का आंसर आया 0 = 0। हाँ, थर्ड वाला भी सेटिस्फाई होता है। ये हो गया, पहला क्वेश्चन लिख लिया तुमने? सर, पूरा हो गया। हाँ, एक कोई बच्चा था ना जिसको पहला क्वेश्चन चाहिए था, लिख लो। हाँ पहला हो गया। ठीक है, so we move to next question. जैसे पहला सर क्वेश्चन किया like that, you can solve. सेकेंड क्वेश्चन तो जिन्होंने नहीं किया है वो एज ए होमवर्क उसको साइड में लिख सकते हैं, एंड दे कैन सॉल्व, राइट? नाउ यू कैन सी दिस सिक्स क्वेश्चन. If the work done, सर इन सब के सॉल्यूशंस आपके वीडियो में है? पता नहीं मुझे, इसके शायद मैंने अभी डाले नहीं है, इसके नहीं डाले, बट आपको ये लेक्चर जो है, ये लेक्चर तो मैं शेयर कर ही देता हूँ, तो जो लेक्चर में हो रहे हैं वो आप देख सकते हो। अलग से वीडियो में मैंने इसके सोल्यूशन नहीं डाले हैं, शायद मैंने शायद वहां पर ये फोर्थ प्रॉब्लम तक ही सॉल्व किया है, फिफ्थ नहीं सॉल्व किया है अभी। ओके, नाउ सिक्स क्वेश्चन. If the work done by a body on application of a constant force is directly proportional to distance traveled by the body, express this in the form of equation in two variable and draw the graph of the same by taking the constant force as 5 unit. Also read from the graph the work done when the distance traveled by the body is 2 unit and 0 unit. तो यहाँ पर क्या दिया?
if the work done by a body A on application of a constant force is directly proportional to distance traveled. So जो वर्क डन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस है, राइट. सो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर लिख सकते हो आपका जो वर्क डन है, प्रॉब्लम में दिया है कि आपका जो वर्क डन है, ओके, वो क्या है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट. ये आपने फिजिक्स में पढ़ा है, वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट. सो वर्क इज इक्वल टू क्या होगा, देयर विल बी वन कांस्टेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट. वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, राइट है. तो this constant is nothing but your force. Now let us again go to the problem. Let us see what else they have given. If the work done by a body on application of a constant force is directly proportional to the distance traveled by the force, express this in the form of equation n to variable and draw the graph. We know that work is force into displacement, so directly we can write here work is equals to सर कुछ नहीं समझा. नहीं समझा, अच्छा सर नहीं समझ रहा. अच्छा ठीक है. देखो अपना क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन यहाँ पर क्या लिखा है, इफ द वर्क डन बाय ए बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस. इसका ये लाइन का इतने का मतलब समझ में आया आपको? सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये आपको 7th स्टैंडर्ड में होगा ना. जैसे अगर x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y तो ऐसे लिखते हैं ना, मतलब अगर x बढ़ेगा तो y भी बढ़ेगा, अगर x कम होगा तो y भी कम होगा. अच्छा मतलब x 2 होगा तो y भी 2 होगा, x 1 होगा तो y भी 1 होगा. नहीं ऐसा नहीं है. अभी जैसे समझो आपको एक पेन 5 रुपए की आती है, एक पेन कितने की आती है, 5 रुपए की, तो दो पेन कितने की आएगी, 10 रुपए की. 10 रुपए की. 3 पेन 15 रुपए की. अच्छा हम बोलेंगे कि जो नंबर ऑफ पेन और जो अमाउंट है ना, दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. अच्छा अगर एक पेन 10 रुपए की है तो दो पेन 20 रुपए की, फिर 3 पेन 30 रुपए की, ऐसा बढ़ते जा रहा है. ऐसे बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि दे आर इन डायरेक्ट रेशियो, दे आर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल. और डायरेक्ट प्रोपोर्शनल में होता क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल में आप y अपॉन x निकालोगे ना तो ये आपको कांस्टेंट मिलेगा, और y इज इक्वल टू फिर आप क्या लिख सकते हो, कांस्टेंट इनटू x. कांस्टेंट इनटू x. हाँ, यहाँ पर आपने एग्जांपल से देखा ना कि y और x का जो रेशियो है वो एक कांस्टेंट वैल्यू मिलती है. यहाँ पर इस एग्जांपल में वो कांस्टेंट रेशियो क्या है, 3 है. ओके, तो ये एग्जांपल में 3 है, तो y इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू x. नाउ वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस. तो मैंने आपको यहाँ पर क्या लिखा था, मैंने लिखा था जो वर्क है, वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस. डिस्टेंस लिखो या डिस्प्लेसमेंट लिखो, एक्चुअली परफेक्ट वर्ड होता है डिस्प्लेसमेंट. और नहीं समझ रहा सर मैं क्वेश्चन समझ गया, मतलब कि अगर कोई बॉडी एक काम करती है तो उसका ऐसे मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जितना उसने ट्रेवल किया है डिस्टेंस. जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, आप जितना डिस्टेंस ट्रेवल करोगे उतना आपका वर्क होगा ना, उतना काम होगा. हाँ मतलब अगर हम लोग ने 1 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया तो जैसे हम लोग ने 20 कैलोरी जैसे बर्न की, ऐसे टाइप. हाँ 10-20 कैलोरी बर्न किया, तो 2 किलोमीटर आप ट्रेवल करोगे तो 40 हाँ कैलोरी समझा. तो इट इज डायरेक्ट रिलेशन, राइट. हाँ तो यहाँ पर वर्क, हाँ जी नहीं आ रहा समझ में. भरत को नहीं सर. समझ मुझे तो सब सर बाउंसर क्वेश्चन जा नहीं रहा है. समझ में आया. आदित्य को सब बाउंसर जा रहा है. अरे यार, ओके. आपको मतलब प्रोपोर्शनलिटी का सर मुझे तो पता नहीं फिफ्थ है. वाला भी नहीं समझा. हाँ इजी है थोड़ा, अगर प्रैक्टिस करेंगे तो समझ जाएगा. हाँ देखो आपको क्या दिया है, आपको दिया है कि वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस. क्वेश्चन आपके सामने है ना, क्वेश्चन आप पढ़ सकते हो. क्वेश्चन आपको क्या दिया है, मैं यहाँ पर भी क्वेश्चन वाला पेज ओपन नहीं करता. आपको क्वेश्चन में क्या बोला है कि वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस. यस, हाँ सर, हम लोग जितना डिस्टेंस चलेंगे उतना हमारा ये काम भी बढ़ेगा. वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस दिया है तो उसको आप ऐसे लिखते हो ना, ये जो वर्क है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, ऐसे लिखते हो बराबर.
अगर वर्क बढ़ेगा तो डिस्टेंस भी बढ़ेगा। साइन है, ये साइन है, साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, ये इंडिकेट करता है कि प्रोपोर्शनल है, मतलब ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। अब अगर वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस है तो इसका मतलब वर्क इज कांस्टेंट इनटू डिस्टेंस है। कांस्टेंट कोई कांस्टेंट वैल्यू होगी, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हाँ, करना। क्योंकि हम लोग वर्क और डिस्टेंस को अगर ऐसे हम लोग डिवाइड करेंगे तो कांस्टेंट वैल्यू आएगी। सर वर्क अपॉन डिस्टेंस पहले करेंगे तो फिर कांस्टेंट मिलेगा, हाँ। फिर हम लोग ये सॉल्व करेंगे ना वर्क ओके ओके, देखो वो कर सकते हो। कांस्टेंट इनटू डिस्टेंस। हाँ, आपने ये फिजिक्स में ये फॉर्मूला पढ़ा है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू एस, ये वाला फॉर्मूला आपने किया? नहीं सर, अभी पढ़ेंगे हम लोग। तो आपका जो वर्क होता है ना, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये डिस्टेंस होता है, सर एंड वहां पर आपका जो कांस्टेंट होता है वो फोर्स होता है। ओके, वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, और जो कांस्टेंट होता है दैट कांस्टेंट इज फोर्स। तो यू कैन राइट वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस, वर्क इज इक्वल टू फोर्स डिस्टेंस। तो आपको यहाँ पर जो प्रॉब्लम दिया है, ये प्रॉब्लम का सिंपल मीनिंग ये है कि वर्क इज फोर्स इनटू डिस्टेंस, वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। ओके, फिर इसको बोला कि एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन। तो यहाँ पर ये आपने इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन लिखा, W इक्वल टू एस इंटू एस, ये आपका इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन। हाँ, तो सर माइनस W इंटू एफ इंटू एस हो जाएगा इज इक्वल्स टू यहाँ पर 0। आपने इक्वेशन लिख लिया। अब इन्होंने क्या बोला है कि एक्सप्रेस दिस सर इन ये द नहीं फॉर्म ऑफ समझा इक्वेशन माइनस इन टू वेरिएबल। सर नहीं समझा। आदित्य, तुमको डायरेक्ट प्रोपोर्शनल समझा क्या? डायरेक्ट प्रोपोर्शनल क्या होता है? हाँ सर। डायरेक्ट प्रोपोर्शनल आपने ना 7th 8th में किया हुआ है, तो वहां पर हाँ बहुत सर, डिटेल में है ये वो कॉन्सेप्ट। समझा। हाँ, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल मतलब अगर आपका वर्क डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस है तो उसको ऐसे indicate करते हैं जैसे मैंने बोर्ड पे इंडिकेट किया है। ये समझा पहली लाइन? हाँ सर। अभी अगर वर्क डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस है ना, तो हम ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाकर एक कांस्टेंट यूज करते हैं। आप मैथ्स में वापस से रिवाइज करोगे। सर सर भरत, क्या हो गया? आपको डायरेक्ट प्रोपोर्शनल भी नहीं समझ में आया? सर एक्चुअली सर हाँ, सर मुझे 6th वाला नहीं समझ में आ रहा और 5th वाला भी नहीं, आज कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। सर मैं एक हाँ बार ट्राई सर, करूँ। सब लोग सर कुछ इतना भी जल्दी समझ नहीं जल्दी आ रहा। कंप्लीट कर लेते, तो जिन लोगों को नहीं समझा वो होता ही नहीं। हाँ वही। अच्छा, अरे तो यहाँ पर ना भरत, भरत, हाँ सर। अभी तुमको जो फिफ्थ प्रॉब्लम है ना, हाँ अभी हाँ आप लोग ध्यान से वापस से मैं रिवाइज करता हूँ फिफ्थ प्रॉब्लम से, ध्यान से सुनना भरत, ठीक है? सर, एकदम स्टार्टिंग से। एकदम स्टार्टिंग से सुनो। आपको फिफ्थ प्रॉब्लम यहाँ पर क्या दिया है? क्वेश्चन पढ़ो, रीड करो क्वेश्चन। From the choose given below, choose the equation. The graphs are given. Figure 4.6. हाँ, अभी यहाँ पर एक ग्राफ दिख रहा है, ग्राफ। हाँ हाँ, ये ग्राफ कौन से लाइन का है वो आपको फाइंड करना है, राइट ना? ये जो ग्राफ हाँ बनाया है, ये ग्राफ यहाँ पर हाँ मुझे जो कुछ लाइन दी हुई है ना, कितनी लाइन दी हुई है? यहाँ पर 4 लाइन दी हुई है। y इक्वल टू एक्स, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 2x। ऑप्शन है क्या सर ये? हाँ, ये ऑप्शन है? ये 4 लाइन दी हुई है। ये 4 लाइन में से कौन सी लाइन का ग्राफ नीचे बनाया वो तुमको फाइंड आउट करना है। यस, ये आपका ऑप्शन है, आपको। यानी ऑप्शन है, यानी कि ये 4। हाँ, ये 4 में से कौन सी लाइन है वो आपको देखना है, बराबर? तो आप कैसे देखोगे कि कौन सी लाइन का ये इक्वेशन है? आपको ये लाइन पे 3 पॉइंट उन्होंने दिया है। एक पॉइंट दिया है -1 1, एक पॉइंट दिया है 0 0, और एक पॉइंट दिया है 1 -1। ठीक है, 3 पॉइंट दिखाई दे रहा है आपको, भरत? हाँ सर। ये 3 पॉइंट दिख रहा है ना, -1 1 0 0 और 1 -1। हाँ हाँ तो अगर अगर तुम मानो कि ये पहला वाला इक्वेशन है सही, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये इक्वेशन ये तीनों पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा, भरत? हाँ हाँ हाँ, इसका मतलब ये y इक्वल टू एक्स जो है, ये मैं x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 1 लिखूंगा तो सेटिस्फाई होगा। बट सेटिस्फाई होता है क्या लिखने पे?
मतलब कैसे सर? अरे कैसे, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पर? एक्स कोऑर्डिनेट तुम्हारा क्या है? -1 है ना? -1 और वाई कोऑर्डिनेट क्या है? 1। 1। तो यहाँ पर y को 1 और x को -1 लिखेंगे तो बराबर है क्या? नहीं 1 सर। इक्वल टू -1 भरत, 1 इक्वल टू -1 बराबर होता है क्या? नहीं, 1 = 1 होना चाहिए। हाँ, तो मतलब ये 1 -1 ये पॉइंट पहले वाले लाइन को सेटिस्फाई नहीं करता ना, हाँ, तो इसका मतलब ये वाली लाइन पे ये पॉइंट नहीं हो सकता। यानी x = y यूज नहीं हो सकता। हाँ, x इक्वल टू वाई यूज नहीं हो सकता। या ठीक है। समझा। हाँ, तो ऐसे ही तुम दूसरा वाला पॉइंट मतलब दूसरी वाली लाइन को चेक करो, तो पहला तो तुम्हारा ऑप्शन हो गया कि पहला वाला नहीं होगा, ये गलत है। अब दूसरा वाला चेक करो। दूसरा तुमने x की वैल्यू पुट की -1, दूसरे हाँ वाले इक्वेशन में x की वैल्यू -1 और y की हाँ वैल्यू 1 पुट की, और यहाँ पर हाँ, 0 है, तो -1 + 1 कितना होता है? 0 राइट। हाँ, ये होगा। तो ये हो रहा है। ऐसे ही तुम दूसरा वाला पॉइंट 0 0 भी है, ये वाले को भी चेक करके देखो हो रहा है क्या। 0। हाँ, हो हाँ रहा। सर। और ऐसे ही ये तीसरे पॉइंट को भी चेक करके देखोगे, ये भी होगा। हाँ, होगा होगा होगा। मतलब सेकंड वाला इक्वेशन तुम्हारा सही है। हाँ बस हो गया। तो एक इक्वेशन मिल गया सही, तो बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक ही इक्वेशन सर। होगा। हाँ सर हेलो। हाँ भरत, सुन रहा हूँ। सर, आपका वॉल्यूम बहुत कम आ रहा है। अच्छा, मेरा वॉल्यूम कम आ रहा है क्या? एक मिनट, हाँ एक मिनट। सर बराबर है। बराबर है ना कनक? भरत अपने उसका वॉल्यूम बढ़ा कर। हाँ सर बराबर है। अच्छा, भरत सर अपने का अभी एक बार वॉल्यूम आपको तेज कर। सोल्यूशन। ठीक है ठीक है। चेक हाँ कर दिया हाँ चलो, सर बराबर। एक बच्चे बराबर को है। सही आ रहा है तो मतलब सही है सर वॉल्यूम, बराबर है। चेंज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके। तो भरत को फिफ्थ प्रॉब्लम समझ में आ गया, मतलब मैं कंसिडर करूंगा पूरा 9th हाँ बी को सर, हाँ फिफ्थ सर। प्रॉब्लम समझ में आ गया, सर 9th को। बराबर, सर हाँ। एक बार फिफ्थ सर का सोल्यूशन दिखाओ ना। हाँ, मैं सोल्यूशन सर, भी इसमें दिखाता हूँ। सॉल्व नहीं करना है यानी कुछ। अच्छा, यहाँ पर एक लड़का और है, ओम। ओम, यू आर ऑल्सो प्रेजेंट? यस सर। हाँ, तुमको भी समझ में आया? हाँ अच्छा ठीक है, ओके। नाउ आपको सॉल्यूशन देखना है तो सॉल्यूशन देखो, मैंने जो चीज मैंने बोली है वही चीज मैंने लिखी भी है। यहाँ पर आप देखोगे तो मैंने क्या लिखा है, देर आर 3 पॉइंट ऑन द लाइन, 3 पॉइंट है लाइन पे, -1 1 0 0 1 -1। अब ये ABC नंबर जो है ये दे सकते हो आप अपने मर्जी से, ABC दे दो, PQR दे दो, XYZ दे दो, नो प्रॉब्लम। XYZ मत दो क्योंकि इक्वेशन भी XY के फॉर्मेट में है। ओके, फिर पहला वाला इक्वेशन लिखा मैंने y = x। अब ये पहले वाले इक्वेशन में x -1 और y 1 पुट किया, तो यहाँ पर -1 = 1 आया, विच इज इनकरेक्ट। तो इसके लिए मैंने बोला कि y = x इज नॉट द रिक्वायर्ड लाइन। फिर ये लाइन तो हो गया खत्म, चेक कर लिया हमने, वो नहीं है हमारी लाइन। फिर दूसरी लाइन ली, x + y = 0। तो x + y = 0 में x की वैल्यू -1 पुट की एंड y की वैल्यू 1 पुट की, तो -1 + 1 0 मिलता है, सेटिस्फाई हो जाता है। फिर दूसरा पॉइंट भी हमने चूज किया, वो भी सेटिस्फाई हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि x + y = 0 ये लाइन है। परफेक्ट। अभी आपने लिखा नहीं है, आपको लिखना है तो बेटर बाद में ये वीडियो शेयर किया जाता है, आप वो वीडियो को ओपन करके देख के लिख लेना। ओके, क्योंकि काफी टाइम दिया हमने ये लिखने के लिए भी। राइट है, अभी सबको समझ में आ गया भरत? नो हाँ प्रॉब्लम? हाँ सर। सर। ओके, हाँ सर। वेरी गुड। ठीक है, अभी आपका जो सेकंड प्रॉब्लम है, सेकंड प्रॉब्लम, सिक्स प्रॉब्लम, देखो आप आगे जाओगे ना तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा प्रॉब्लम, तो थोड़ा ध्यान से प्रॉब्लम को समझना जरूरी है। क्वेश्चन है कि इफ द वर्क डन बाय ए बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। तो आपका जो वर्क है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड है। तो यहाँ पर मैंने लिखा कि जो वर्क है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अभी वर्क इक्वल टू, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हम इक्वल में बदलते हैं कैसे, एक कांस्टेंट को यूज करेंगे, कांस्टेंट इनटू डिस्टेंस करेंगे तो हमारा वर्क इक्वल टू कांस्टेंट इनटू डिस्टेंस, ये हमारा इक्वेशन हो गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है भरत? आपको भी क्लियर है?
सर नहीं सर। आया। अरे क्लियर है। उनको वर्क डायरेक्टली सर प्रोपोर्शनल कांस्टेंट फाइंड आउट करने के लिए तो वर्क अपॉन सर हाँ सर मुझे आवाज नहीं सुनाई दे रही, पता नहीं मेरा माइक में नहीं हो रहा या फिर आपके कुछ समझ में नहीं आ रहा। भरत अपने फोन की वॉल्यूम तेज कर। बाकी बच्चों को सबको सर आवाज क्लियर एक्चुअली आ मैं रही है। आपके ये सर क्लियर आ तो रही है लेकिन थोड़ा लो है वॉइस आपका। हम लोग अपने फोन का वॉल्यूम बढ़ाते हैं ना तो दूसरों का वॉल्यूम ज्यादा आता है। अच्छा अच्छा अच्छा, एक मिनट। हाँ भरत तेरी अभी आवाज आ रही है। अभी मेरी आवाज क्लियर है पहले से? हाँ सर अभी एकदम ठीक है। हाँ अभी सर। एकदम ठीक है, ओके फाइन, ठीक है। सर ओके तो वर्क, हाँ सर और एक काम कर लो। वर्क अपॉन डिस्टेंस जैनम बाद जैनम में सॉल्व करेंगे ना। हाँ जैनम हाँ यस अपना ये जो हेडफोन मतलब जो भी तू यूज कर रहा है ना उसको ना थोड़ा अपने ना लाइक मुंह से ना थोड़ा दूर रख। तेरी आवाज ना एकदम ज्यादा सुनाई देती है फिर। अब ठीक है। ओके हाँ अब सही है। हाँ सर हाँ। आप अभी एक देखो काम करो, आपने ना, हाँ वहाँ पे वो फोर्स लिखते हो ना उसकी जगह पे ना कांस्टेंट ही लिखो तो फिर कंफ्यूजन नहीं हो हाँ जाएगा। ठीक है ठीक है ठीक है। तो यहाँ पर वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, तो आप क्या करोगे, आप लिखोगे वर्क अपॉन डिस्टेंस। ये एक्चुअली पूरा डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, तो मैं खाली डिस्टेंस लिख रहा हूँ, आप पूरा डिस्टेंस ट्रेवल्ड भी लिख सकते हो। वर्क अपॉन डिस्टेंस इज इक्वल टू, वर्क अपॉन डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या है आपका, कांस्टेंट, कांस्टेंट। क्योंकि उसकी वैल्यू पुट करने के वर्क बाद अपॉन, कांस्टेंट वैल्यू आती है। हाँ कांस्टेंट वैल्यू आती है। तो इसका मतलब आप लिख सकते हो वर्क इक्वल टू कांस्टेंट इंटू डिस्टेंस। कांस्टेंट इंटू डिस्टेंस। ओके डिस्टेंस। हाँ क्वेश्चन में हम लोग को क्या दिया है, वर्क का वो वैल्यू दिया है या फिर डिस्टेंस का वैल्यू दिया है? अब अभी आपको क्वेश्चन में यहाँ पर आगे बोला है कि एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन इनटू वेरिएबल, वो कर लिया हमने। एंड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम बाय टेकिंग कांस्टेंट फोर्स एज 5 यूनिट। कांस्टेंट आपको कितना लेना है, 5। तो कांस्टेंट 5 लेना है। सर तो यहाँ पर कांस्टेंट इसमें पहले ही दे दिया। हम लोग यहाँ पर कंसिडर करते हैं लेट, ये जो वर्क है वर्क को y हम इंडिकेट करते हैं, और ये जो डिस्टेंस है डिस्टेंस को हम x इंडिकेट करते हैं, और ये जो कांस्टेंट है कांस्टेंट Z। आपको गिवन है कितना, 5 5 ये आपको गिवन है। ओके तो देयरफॉर आपका ये जो तो वर्क सर है 2 y, + 3 ऐसा y इक्वल टू हो गया 5x, y हो गया कितना, y इक्वल टू 5x। हाँ y इक्वल टू 5x, आपका ये y इक्वल टू 5x लाइन हो गया। अब यहाँ पर आपको इक्वेशन मिल गया। अब इन्होंने बोला है कि हाँ सर वर्क इज हाँ इक्वल वाई इज इक्वल टू 5x कैसे हुआ? क्योंकि आपको फोर्स दिया क्योंकि है 5। कांस्टेंट दिया हुआ है 5 यूनिट्स हाँ था ना। हाँ और डिस्टेंस है सर, x, तो 5 थोड़ी 2x ऊपर 5x। हाँ हाँ सर स्क्रीन थोड़ी बराबर ऊपर लो हाँ ना। हाँ बस यहाँ से स्टार्ट होना ना ठीक सर। है। तो ये आपका सर y इक्वल टू 5x हो गया। सर हाँ हाँ आपने सर जो देयरफॉर हाँ बोलो बेटा, बोलो बोलो सुन लो। कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस किया वो फॉर्मूला यूज किया। हाँ जी, ये क्या सीक्वेंस में हमने एक एक चीज की है ना, हर स्टेप पे तुमको एक एक चीज समझ में आई। तो यहाँ से ये आया, यहाँ से ये आया, फिर वर्क को y एज्यूम कर लिया, डिस्टेंस को x, और कांस्टेंट 5 गिवन है तो y इक्वल टू 5x। अब इसको प्लॉट करना है, तो प्लॉट करने के लिए हम क्या करते हैं, प्लॉट करने के लिए हमको 2 से 3 पॉइंट चाहिए। तो हम बोलेंगे व्हेन x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू ये भी 0 हो गया। तो तो सर एक ये पॉइंट सब तुम्हारा हम 0, लोग ने सिर्फ 0 हो ये गया। इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए किया। अभी ये पूरा खाली आपने इक्वेशन फाइंड आउट किया है। अब इसको प्लॉट करना है, तो प्लॉट करने के लिए आपको पॉइंट भी चाहिए इक्वेशन पे, तो आप पॉइंट फाइंड आउट कर रहे हो। तो व्हेन Points x चाहिए, 0 हाँ। y 0 मिल गया। व्हेन x आप कंसिडर करोगे 1, तो आपको y मिलेगा 5 इंटू 1 y 5 तो 1, 5 मिल गया। फिर आप कंसिडर करोगे x is व्हेन equals to 2। x इक्वल टू 2, आपको y इक्वल टू 10 मिल गया।
10। हाँ फिर आप ग्राफ, ठीक है, सर तो x हाँ, जीरो सर, करेंगे तो तो y ये जीरो हाँ। आएगा ना। सर इसमें सर हाँ अगर x जीरो करोगे तो y जीरो। का क्वेश्चन है हाँ ये यहाँ पे सर एक बढ़ रहा है तो 2 है, इसमें मल्टीप्लाई। सर अगर हम हाँ लोग x3 लेते तो हाँ y मल्टीप्लाई 15 हो तो जाता 5 था होगा। ना। हाँ हाँ एक नंबर बराबर। हाँ तो यहाँ पर अभी आपका ये x एक्सिस है हाँ और ये y एक्सिस है। ओके, यहाँ पर वैल्यू 1 2 3 4 ये वैल्यू ले ली। यहाँ पर वैल्यू, यहाँ पर अभी क्योंकि 5 10 15 इस तरह से आ रहा है, तो यहाँ पर वैल्यू मैं 5 ले लेता हूँ, फिर उसके बाद 10 ले लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं 15 ले लेता हूँ। फिर मेरा क्या क्या पॉइंट है, एक 0,0 पॉइंट है, तो हम पॉइंट को प्लॉट कर लेते हैं। तो पॉइंट को प्लॉट करेंगे तो एक पॉइंट आपका 0,0 है, सर फिर सर एक पॉइंट आपका 0 1,5 है। हाँ भरत, सर ये फिर एक पॉइंट 2,10 है। 2 स्ट्रेट लाइन बन ओके, गए। हाँ सर तो ये आपने लाइन ड्रॉ कर दी। यस, सर x2 और y कैसे लिया 10? अरे यार तुम, क्या होता है मेरे ख्याल से आमिर खान वाला प्रॉब्लम हो गया है तुमको। जब तुम x की वैल्यू, x की वैल्यू 2 लेते हो, तो ये इक्वेशन है ना तुम्हारा y इक्वल टू 5x, ये इक्वेशन में पुट करो ना। ये इक्वेशन भूल गए क्या? ये इक्वेशन दिया है देखो, y इक्वल टू 5x, तो आप x की वैल्यू कितनी पुट कर रहे हो? 2 2, तो y की वैल्यू कितनी होगी? 10। 10। हाँ देखो क्या होता है मालूम है, हम जो कॉन्सेप्ट पढ़ के आगे आ जाते हैं ना, वो कॉन्सेप्ट आपको रिवाइज करना चाहिए अगर आप भूल रहे हो तो, क्योंकि फिर हम आगे बढ़ जाते हैं तो आगे पीछे वाली चीज को ज्यादा डिटेल में नहीं सीखते हैं ना, क्योंकि ये चीज हम पहले सीख चुके हैं कि कैसे इक्वेशन के सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। अब तुम सर आज मुझसे पूछोगे कि सर ये कैसे फाइंड आउट किया, तो ये थोड़ा सर सा तुम्हारा पीछे वाला लेक्चर में प्रॉब्लम है, तो पीछे वाला सर लेक्चर रिवाइज करो। हाँ सर ये मुझे पता है, ये तो ऐसे मिलता है। हाँ, फिर तो नहीं सर तुमको मैं डाउट सोचा क्यों हुआ? हाँ ये रैंडमली ले लेना, मैं भी कुछ और ले सकता था ना। तुम लो ना 3 लो, 3 के साथ 15 आ जाता है, तुम 10 लो, हाँ 10 के साथ 50 आ नहीं जाता है। समझ इट इज योर चॉइस। यस, हाँ अब आपको ये लाइन मिल गई। अब वापस से आप आपके प्रॉब्लम पे जाओगे, तो आपके प्रॉब्लम पे फिर आगे इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि आपको क्या करना है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम बाय टेकिंग कांस्टेंट फोर्स 5। ऑल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ। रीड फ्रॉम द ग्राफ मतलब ग्राफ को आपको देखना है, ग्राफ को आपको पढ़ना है, और ग्राफ को पढ़ के आपको क्या निकालना है, the work done when distance traveled by the body is 2 and 0। तो जब डिस्टेंस ट्रेवल्ड आपका यस 2 है, तो यहाँ पर वापस से हम हमारे प्रॉब्लम पे आ जाते हैं और यहाँ पर देखते हैं कहाँ गया हमारा सॉल्यूशन। हाँ यहाँ पर है। ओके, यहाँ पर सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। तो बोला जब डिस्टेंस 2 है, तो ये x मेरा डिस्टेंस है, तो यहाँ पर डिस्टेंस पे 2 देखेंगे और ऊपर जाएंगे, ऊपर जाएंगे और ये हमको इधर वर्क मिल गया, तो हम बोलेंगे कि व्हेन, जब यहाँ पर फ्रॉम ग्राफ लिख सकते हैं हम, फ्रॉम ग्राफ। ओके, व्हेन x इज 2, y की वैल्यू कितनी आ रही है, 10 आ रही है, राइट। तो देयरफॉर ये जो वर्क है, दिस वर्क इज 10 व्हेन x इज 2। ओके, 2 ऐसे ही आप 0 पे चेक करोगे। सिमिलरली 0 अगर x है तो y भी 0 ही होगा। सिमिलरली आपको वर्क आपको मिलता है 0 व्हेन डिस्टेंस इज डिस्टेंस 0। इज इक्वल्स टू 0, डिस्टेंस इक्वल टू 0 क्योंकि हम लोग ने कुछ चला ही नहीं है तो हम लोग का वर्कआउट कैसे कैसे होगा। होगा, सही बात है। ओके, तो ये आपका पूरा प्रॉब्लम था। प्रॉब्लम को पढ़ने के बाद पहले आपको गिवन कंडीशन से आपको इक्वेशन बनाना है, और इक्वेशन बनाने के बाद में आपको उसको इस तरह से सॉल्व करना है। हाँ वैल्यू यूनिट पुट करना है। अगर अभी सर 5 वाला भी सर करने का है ना, when x is equals to 5 y is equals to ऐसा पूछा 25। है क्या क्वेश्चन? हाँ यूनिट्स लगाने को बोला है ना लास्ट में। अच्छा, तो यूनिट लगाने को बोला है, मतलब आप खाली यूनिट लिखोगे। अब सर यहाँ पर मेरे को उसने अब समझ में आया। मीटर सेंटीमीटर कुछ नहीं दिया है, तो यू राइट कहाँ 5 किधर है? 5 यूनिट फोर्स है ना, वो तो आपने लिया ना फोर्स 5 सर ये 2 कांस्टेंट। 2 हाँ तो 2 पे और 0 पे सर निकाल लिया मेरे ना को आपने। पहले लगा हाँ था कि हम लोग को हाँ डिस्टेंस या कुछ दिया रहेगा, इसलिए मैं हाँ कंफ्यूज हो रहा था। अब हाँ, तो सर समझ अभी गया। ग्राफ दिखाओ ना, क्लियर हो गया ना? हाँ अभी क्लियर ना? ओके फाइन, ग्राफ ठीक है। दिखाओ ना। ये देखो ग्राफ। हाँ सर। हाँ
तो नीचे करो ना थोड़ा सा। हाँ जी। सर हो गया। ओके, वेरी गुड। तो ये इस तरह से तुम्हारे सर एक बार वो प्रॉब्लम्स लेफ्ट वाला देखो। होते हैं। हाँ, मेरी आवाज पहले से क्लियर है या पहले जैसी ही है? क्योंकि पहले मैं बिना सर पहले जैसी पहले से माइक बात कर रहा था, क्लियर। अभी मैंने माइक। सर मुझे तो अच्छा, पहले जैसी लग कनक रही है। कनक पहले जैसी लग रही है। हाँ ओके, सर। ठीक है। हाँ हाँ, हाँ ठीक है ठीक है। नहीं भाई, मैं समझना चाहता हूँ ना कि माइक नहीं यूज़ किए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि जनरली होता नहीं है प्रॉब्लम। इसके पहले मेरा 11th में 12th में लेक्चर था, वहाँ पर भी मैंने कुछ नहीं यूज़ किया था, बट उनका आवाज़ क्लियर जा रही थी। सर अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे कि इधर ही वाइंड अप करेंगे? सर ये एक्सरसाइज अभी बहुत अरे, बढ़िया एक है। 20 तक है ना, 1:20 तक आपका लेक्चर है, तो हाँ आप नेक्स्ट हाँ क्वेश्चन पे जा सकते हो। ओके, तो मेरी बैटरी अभी तो सिक्स ये देखो, ये परसेंट हो गई। क्वेश्चन। हाँ मेरी भी। ओके, आप लोग कितने बजे से लेक्चर के लिए बैठते हो? 10। 10 बजे से ना? सर 10 बजे से। 10 बजे हाँ से और तो 8 सर अभी 8 तो बज चुके हैं। 10 बजे आपका मोबाइल में 90% बैटरी चार्ज करके रखना चाहिए, 90%, सर तो वो सुबह 8 चलेगा। बजे सर नहीं सर 100% कल। रहता है। हाँ बट कल 2 दिन अच्छा, फिर चलता है भी नहीं मेरा होता है? तो। सर राजेश सर सर। हाँ, मेरा फिर सर हाँ, नहीं आता बोलो। है। अभी भी बैटरी 58% और मैंने 96% से शुरू किया था। सर राजेश सर। 120 तो अभी तक हो कितनी हो जाएगा गई? मेरा बैटरी। सर मेरी भी राजेश अच्छा सर। अच्छा, हाँ ठीक है ठीक है। 100% है। हाँ, बोलो बोलो बोलो। सर अभी तो हमारा प्रेप भी रहता है, थोड़ा टाइम कम हो गया इसलिए अच्छा है। तो हम लोग 8 बजे से बैठते थे, अभी डायरेक्ट अभी खत्म होता था। अच्छा अच्छा, ठीक है। अभी 8 से 9 बैठते हो, फिर सर एक मैं घंटा बीच 120 में तक गैप रह मिलता है। लूंगी। हाँ ठीक है, हाँ चलेगा। वैसे 120 के पहले मैं छोड़ दूंगा, आप अगर 7th प्रॉब्लम फटाफट कर लोगे तो। अब जैसे 6 हाँ है ठीक है वैसे चलो। 7th भी है, सर 7th करा पढ़ो दूंगी। और खुद से ट्राई करो, जरा देखो क्या है। 7th प्रॉब्लम ट्राई करके देखो। सर सर हाँ, सर इस पर मेरे को 6 में ये आपने यूज क्या किया है, 2 यूनिट और 0 यूनिट का यूज किया है कि ऐसे ही लिखा है? ये कुछ समझ में नहीं आया। नहीं नहीं, उन्होंने क्या बोला था कि आप ग्राफ पेपर पे ना, क्या बोला है कि रीड फ्रॉम द ग्राफ द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज 2। जब डिस्टेंस 2 होगा तो वर्क कितना आपको ग्राफ से फाइंड आउट करना है। तो ये जो आपका ग्राफ था ना, ग्राफ से जब x की वैल्यू 2 थी तो y की वैल्यू क्या है ये हमने फाइंड आउट किया। एक्चुअली हमने प्रॉब्लम लिखते समय ही 0, 1 और 2 की वैल्यू निकाल ली। अगर नहीं निकालते, जैसे आपको पूछेगा कि भाई ग्राफ से आप बताओ कि जब x का वैल्यू 3 होगा तो वर्क कितना, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ऐसे एक ऐसा वर्टिकल लाइन खींचना है ऊपर तक, और फिर यहाँ से एक ऐसा हॉरिजॉन्टल लाइन खींचना है, और फिर वो जहां पर आकर टच करेगा वो वैल्यू आपको मार्क करनी है, और वो वैल्यू आपको क्या देगा, वर्क देगा, व्हेन योर डिस्टेंस इज 3। ओके, तो इन द सेम वे वी हैव टू फाइंड वर्क व्हेन डिस्टेंस इज 2 एंड वी हैव टू फाइंड वर्क व्हेन डिस्टेंस इज 0। हाँ हाँ हाँ, समझे? ओके ओके। नेक्स्ट। हाँ, यस। Next 7 वाला। question, Yamini and Fatima, two students of class 9 of school, together contributed rupees 100 towards the Prime Minister Relief Fund to help the earthquake victim. Write a linear equation which satisfies this data. You may take their contribution as rupees X and rupees Y and draw the graph for the same. सर हम लोग को इसमें लीनियर इक्वेशन खुद बनाना है ना, जो ऐसे इसके डेटा को सेटिस्फाई कर तो सके। x प्लस वाई अभी ना, आपको लिखा x ना, प्लस वाई write a इज linear equation प्लस वाई। which satisfies the data. हाँ सर तो x सर प्लस प्लस वाई y इक्वल इक्वल टू टू 100 वही। 100। फाइव x, से हाँ, सर यस, तो x प्लस 50 y इक्वल प्लस टू 100 और फिर 50 ऐसे ही कर देते। तो सर हम लोग हाँ, कुछ भी ले ले। कुछ भी ले लो और ग्राफ बनाओ। 25 प्लस 75 कुछ भी हो हाँ सकता है। हाँ, कुछ भी हो सकता है, यस। ओके सर।
सर ये तो, और फिर इसका सर ग्राफ बनाना है। हाँ देखो क्वेश्चन में लिखा है राइट द लीनियर इक्वेशन विच सेटिस्फाइज, और उसके बाद लिखा है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम। हाँ ओके सर, चलेगा। बराबर। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके आगे वाला जो क्वेश्चन है ना वो लास्ट क्वेश्चन है, जो आप लोग एक बार खुद घर पे सोचना, ट्राई करना, राइट। ओके सर। जिसने बिना कहीं रिफर किए खुद से कर लिया, उसका मतलब दिमाग एकदम तेज, चाचा चौधरी जैसा। चाचा चौधरी पढ़ा है आपने? चाचा चौधरी, बाबू एंड चाचा चौधरी। सर कार्टून हद तक हाँ, देखा है। ओके सर ठीक है। हाँ मैथ्स के गुरु। सर हाँ बोलो। सर ऐसा दिमाग हमें बहुत मुश्किल से मिलेगा। नहीं नहीं, भगवान ने ना सबको ऐसा दिमाग दिया है, खाली एक्सरसाइज आप दिमाग का करते नहीं हो ना, इसके लिए वो थोड़ा सा ठंडा हो जाता है। उसका एक्सरसाइज बराबर करोगे वो एकदम तेज भागेगा, चाचा चौधरी को भी पीछे छोड़ देगा। सर हाँ अगर हम लोग ऐसे मतलब सेटिस्फाई ग्राफ को ऐसे बनाने के लिए, अगर हम लोग x को 2 लेंगे, हाँ, सर तो अभी आप x को 2 लोगे तो या y, फिर x को 1 लेंगे। हाँ तो y 99 हो जाएगा। प्लॉट कैसे करोगे? सर आप अभी एक वाला करा रहे हो? नहीं नहीं, 8 वाला मैं नहीं करा रहा, 8 वाला चाचा चौधरी करेगा। आप में से जो चाचा चौधरी होगा ना वो सर करेगा, सुनो और नेक्स्ट लेक्चर में हमको बताएगा वो। हाँ सर तो हाँ। हम लोग y अगर हम लोग x 1 लेंगे तो y 99 कैसे आएगा? अरे क्योंकि x प्लस वाई 100 है ना, अरे दे हाँ टुगेदर कंट्रीब्यूटेड 100। हाँ सर हाँ बोलो। अभी डायरेक्ट सॉल्यूशन लिखे ना, x और y इज इक्वल टू 100। तुम इक्वेशन लिखोगे x प्लस वाई इक्वल टू 100, फिर उसके नीचे हाँ लिखोगे व्हेन x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 100, व्हेन y इक्वल टू 0 x इक्वल टू 100, व्हेन y x इक्वल टू 50 y इक्वल टू 50। ऐसे 3 पॉइंट मिल गया, फिर ग्राफ बनाओगे। ग्राफ पे हाँ अलोंग x एक्सिस आप क्या कर सकते हो, 25 50 75 100 ऐसे पॉइंट ले लो, y पे भी ऐसे पॉइंट ले लो और फिर ड्रॉ कर लो। ओके हाँ समझ गया। बस। भरत हाँ ओके तो यहाँ पर आप सबको प्रॉब्लम समझ आ गया, म्यूट आप सब कर। इसको ड्रॉ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर आपका लेक्चर फिर स्टॉप कर देता हूँ, राइट। तो आपकी बैटरी थोड़ा रेस्ट ले लेगी। हाँ सर। ओके नाउ यू कैन सॉल्व दिस 7th प्रॉब्लम। ओके एंड फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। 8th प्रॉब्लम चाचा चौधरी सॉल्व करके आएंगे और वो चाचा चौधरी हमको एक्सप्लेन करेंगे। हाँ चाची, चाची भी आ सकती है, चाची चाची सर चौधरी भी आ चाची सकती है। आएगी। ठीक है बाय सर। ओके ठीक है, बाय बाय। बाय सर। हाँ बाय बाय। सर आप लीव ना सर, बाय। हाँ हाँ ठीक है, ओके बाय बाय। भरत चाचा। हाँ बोलो चाचा। बाय सर, बाय चाचा। बाय 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 सर। बाय बाय। रितेश Hi sir, thank you. Take care. बोलिए, वेलकम। खेलोगे? या थैंक यू। सर ग्राफ बना दिया, लाइन पे आ रहा है। आइए खेलो हमारे साथ। ग्राफ बना दिया, लाइन पे आ रहा है। हाँ ओके सर। सर लाइन थैंक पे यू। आएगा ही ना। हाँ वेलकम। सर हैव अ सर नाइस डे। या हाँ बोलो बोलो। सर हाँ बोलो बेटा। सर वेट करो सर, 1 मिनट मैं आपको दिखा रहा हूँ। अच्छा अच्छा। सर हाँ सर वाई एक्सिस पे मैं हाँ ऐसे हाँ ले सकता हूँ ना, 25 और 50 75। हाँ हाँ यस यस 100% ले सकते हो। बाय सर, थैंक यू। ओके बाय बाय। श्रेया आप प्रेजेंट हो या फिर श्रेया आर यू देयर? श्रेया श्रेया लॉग इन होके कहीं बाहर चली गई ऐसा लगता है। नेक्स्ट लेक्चर में बात करता हूँ श्रेया से। ओके हेलो। हेलो। हाँ हाँ सर 1 मिनट ना।
हाँ जी